उसके बाद आता है हाउ गुड इज द एल्गोरिथम, मीन्स हाउ वी कैन एनालाइज द एल्गोरिथम, how we can analyze the algorithm, the particular algorithm is good. ठीक है, so we can analyze our algorithm in these parameters. These are the parameters here the showing. What is the time complexity of algorithm, means how much time is taken by the algorithm for executing any particular task. And space efficiency, means how much space is required when the algorithm is executed. And after that, simplicity of algorithm, how your algorithm is simple to utilize. And the next point is generality of an algorithm. And after that, your range of inputs, means you just define the limit of your algorithm, that is the range, for which range the algorithm is work efficiently, means you bound your input, okay, so that your algorithm perform well. That is depends on case to case. Who's there? Yes, please mute yourself. Nikita. Okay. So the performance analysis, these are the performance analysis of your algorithm, means measuring the time complexity, measuring the efficiency, input size and all, जो भी हमने अभी last slide में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इफेक्ट अवर एल्गोरिथम। ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे आप लोगों से, तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्टली आंसर किया था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वन इज द कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड space is required when any algorithm is run, and another one is the variable. That is more important. The variable space complexity, space which is required for executing any algorithm, that is more important. Constant is not too much affecting our complexity, but the variable size of space that is much affect your algorithm. Okay, so you just see, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी हम क्या करेंगे कि कोई भी एल्गोरिथम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें वेरिएबल किस टाइप से डिक्लेयर किए गए हैं, मेमोरी को हम कब ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, कितना मेमोरी ऑक्यूपाइड हो रहा है, किस टाइम तक के लिए ऑक्यूपाइड हो रहा है, दिस ऑल पॉलिसी is affect your space complexity of your algorithm. ओके, एंड फिक्स साइज के बारे में मैंने बता दिया था। फिक्स साइज मींस जो भी हम कीवर्ड्स यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, है ना, हेडर फाइल वगैरह है, आपके ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, स्पेस एंड ऑल, ये सारी जो है ना ये आपके कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। वेरिएबल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कितने फंक्शन आपने डिफाइन किए हैं और कितने वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं, उनका रिलीज टाइम क्या है, उनका लाइफ टाइम, इट मींस द लाइफ टाइम ऑफ योर वेरिएबल, दैट्स ऑल।
तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. The formula is SP, means the space complexity is C plus SP. C plus SP, where C is the constant amount of memory which is required for executing any algorithm, and this SP is the variable memory amount. Variable memory amount that is depends on algorithm to algorithm. ओके, जितनी बार आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, हो सकता है कि वो एल्गोरिथम आपने किन किन फंक्शंस का यूटिलाइजेशन किया है, किन का यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो इन सब के बेसिस पे आपके ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं आप. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. Here is the example of space complexity. So you just see an algorithm ABC, and here the three variables is defined A, B and C, and return A plus B plus C into B plus there is a equation which we want to execute, and here is the space complexity. Space complexity SP, that is the variable length 3, and what is we count this constant as is equal to 0. constant को हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया है, उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया है. सो द SP is equal to 3. अब SP is equal to 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये 3 वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है ना, A, B and C. So these variable are occupied their memory space, ठीक है ना, as per their type definition. आपके इसका टाइप क्या रखा है, इंटीजर रखा है, फ्लोट रखा है, डबल रखा है, उसके हिसाब से आप जो है ना अमाउंट ऑफ मेमोरी कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहाँ पर इसने जो है ना डिफॉल्ट कैलकुलेट करके, और इसने बोला कि 3 वेरिएबल है, तो इसने मेमोरी स्पेस जो है ना वो 3 कैलकुलेट कर दिया. Here is some another example. So you just compute the space of memory. What will be the space of memory of example number 2? Anyone अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दे. एग्जाम्पल नंबर 2 में कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड होगा? यू जस्ट assume the constant is equal to 0. We will not compute the constant memory space. Okay, yes, I am just waiting for your reply. Yes, example number 2, how much memory space is occupied in example number 2? My voice is clear? Yeah, 4, Ashish Kumar. Anyone else? 1 सर, क्योंकि एस में रिटर्न 1 होगा ना, एक ही मेमोरी आएगी. Why the 1? Why 1? How much amount of memory is required? सर एस प्लस AI का जो रिटर्न होगा वो तो एस में जाएगा ना सर? Yes, S में जाएगा. It's okay, but how you will calculate how many space is occupied by this algorithm? देखिए, एक आपने लोकल तो सर, लोकल वेरिएबल तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा ना प्रोग्राम के बाद, तो ऐसे ही सिर्फ देखिए बचेगा ना. क्या है कि यहाँ पर लूप चल रहा है, और जितनी बार आपने अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसका मेमोरी स्पेस अलॉट होता है, ठीक है ना. तो एक तो आपके पास S है. ओके, आशीष कुमार, कैन यू जस्टिफाइड योर आंसर? जी सर. यस, प्लीज.
सर जैसे ही हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको एक मेमोरी लोकेशन लोकेट हो जाता है। ओके, सर जैसे हम लोग ए और एन और आई को एस को यूज करे से पहले हम लोग कहीं ना कहीं इसको डिफाइन किए होंगे मेन फंक्शन में। एग्जैक्टली। तो जैसे ही हम लोग डिफाइन किए वो सबको एक एक लोकेशन मिल गया होगा, उसके बाद ही हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे सम में एग्जैक्टली, ए और एन। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 4 होगा क्योंकि सारे वेरिएबल का एक एक हो जाएगा सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है ना। देखिए बेटा, जितनी भी आपने मेमोरी यहाँ पर यूटिलाइज किया है, देखिए आप एस, एस भी एक कंटेनर है। एस में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ए इज इटसेल्फ अ कंटेनर, जहां पे एक वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एन को भी आपने कहीं ना कहीं डिफाइन किया ही है। तो एक एन हो गया आपका, जो कि आपको यूटिलाइज करना ही है। और आई आपको पता ही है कि फॉर लूप के अंदर भी जब हम डिफाइन करते हैं तो आई को भी हम एक वेरिएबल स्पेस उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, जो भी आप लिखते हैं उसमें इंट आई इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, the initialization of your I. So the memory space which is occupied by this algorithm, that is 4. Exactly, Ashish Kumar, you are clear. And what will be this? What will be the memory amount of this? Example number 3. Anyone? 3 सर, इसका 3। Okay, you just give on the chat box. I will see your name also. Yeah, just analyze and after that you just write. Yeah, Ashish Kumar is typing 3. And what about others? Roshan Kumar is typing 3. Okay, only 2 members is replied. That's it. Okay. And others are calculating, I think so.